Yes, my voice is clear to all of you. My voice is coming to all of you clearly. Let me know so that I can start the lecture. Okay, so we can start now. Why there is less student in the class right now? It's already 5 minutes past 11. बल्कि 7 minutes. इतने कम लोग क्यों हैं? Can anyone update me in the group? Nikunj? Okay. Portal is not working. Okay, so we can quickly revise and then we'll wait for the students to join, then we'll continue. So in the last lecture, we talked about this memory hierarchy. And there you will see, we talk about the different levels of memory. That is the cache memory, the main memory, and the secondary memory. And here in this figure, we talk about two different things. One is the CPU and one is the IOP. CPU stands for Central Processing Unit. It does all kind of computation tasks. And IOP, that is input-output processor, does the task of dealing with all kind of input-output devices. And here you will see the IOP is between the main memory and the secondary storage devices that we are having, like magnetic tapes and magnetic disk. So these are the 2 points that we are having, and then we saw the memory hierarchy that was there. So the register, we discussed in the last lecture that it stands as smallest and fastest. Register is the smallest and the fastest, and it will tend to like this. You'll see cache memory is slightly more. The size of cache memory is slightly more than the register size. Main memory और बड़ा हो गया. Magnetic disk and magnetic tape. As you can see, the size of boxes increases. That indicates the size of each of the memory in the hierarchy will increase. And in terms of speed, you will see the speed is the fastest. This is the fastest one, and this is the slowest one among these all different elements. Fastest to slowest, that is the speed. And if you talk about the size, smallest in size and largest in size. Okay. So that was a point we were having in case of this memory hierarchy. Register, smallest, fastest, cache memory, slightly more than the register. The speed is almost comparable to the register. Then main memory, size is very large, like we are using in the case of RAM, 4 GB, 8 GB. 8 GB sort of systems we are getting right now. The speed is very not at comparable to the level of the cache and all. Then disk and then the tape. Okay. That was a point we discussed. Then we talk about static RAM and dynamic RAM. Static and dynamic RAM means these are the two concepts which can be used to build up these memories. We can talk about the register, cache, and main memory. So register and cache,
they build up of these static RAMs. It is based on the concept of the flip-flop. They're based on the concept of a flip-flop. Based on a concept. तो जो हमारे पास रजिस्टर है, जो भी कंप्यूटर के रजिस्टर्स हैं, ये जो भी हमारे पास कैश मेमोरी है, they all are built up of this static RAM. The concept of static RAM and the RAM card we are having broadly, RAM and ROM we can say it is made up of this dynamic RAM. So I've told you dynamic RAM is based on the concept of the refreshing circuit. It is based on CMOS metal oxide semiconductor transistors, and they use the concept of refreshing circuit. So if it is based on the MOS and along with the capacitors, they are built up with. So capacitors are there, and if they use the capacitors, in that case they need to have this refreshing circuit to refresh it in order to store the value 1. Okay, so DRAM is somewhat slightly, you can say it's cheap, not so much complex. So that's why in RAM ROM we are going to use these concept of DRAM. In the case of register and cache, the static RAM concept is used. In detail, the design of these two static and dynamic RAM we'll discuss later when we discuss the memory configuration in detail. Okay. Then we talk about 3-state buffer. So 3-state buffer means what? Here we're going to have 3 different states. One, when the value of C is 1, C1 है, Y is equal to A, यानी कि 0 दिया तो 0 आ जाएगा. If it is 0, we'll get 0. We'll give 1, we'll get 1. 2 states here हो गए. तीसरा, when the value of C is 0, so this bus or this will be in high impedance state. It means there will be no connection between the input and the output. Input output के बीच में कोई connection नहीं होगा. So this will say the bus or this buffer is in high impedance state. And that's why this small C1 to 0 पे 0, 1 पे 1, ये 3-state buffer हो गया. क्यों discuss किया 3-state? Now we'll see why we discuss the 3-state buffer. Now we'll talk about this RAM and ROM, and we'll see how to combine this RAM and ROM and how the system generates the different addresses for the different memory locations we are having inside a computer system. Now we'll see what logic we are having. See here, as we discussed and we end up in the last lecture, we say this is a RAM chip, size 128 cross 8. Only 128 locations हैं, 128 locations, and each location corresponds to 8 bit of data. By default, all memory is byte addressable. अगर हार्ड डिस्क की बात कर लें, चाहे मैं रैम की बात कर लें, तो हर एक जो हमारे पास लोकेशन है वो बाइट एड्रेसेबल होता है, यानी एक लोकेशन 8 बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है. So here the RAM consists of 128 cross 8 means 128 locations, where each location corresponds to 8 bit of data. And here you will see in case of ROM, we are having 512 locations, where each location corresponds to again 8 bit of data. So totality we can say जो ऊपर वाला कार्ड है RAM है, ये हो गया 128 bytes का हो गया. That part should be clear, क्योंकि इसी के बेस पे सारा कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा. That part should be clear. What is this chip is? So this is what 128 bits, the RAM card, and the lower part it is going to be the 512 bytes. So 512 bytes का ROM कार्ड है, नीचे वाला जो कार्ड ROM का है, और RAM कार्ड हो गया 128 bytes का. ठीक है, आगे क्या क्या कंट्रोल सिग्नल्स है, लास्ट लेक्चर में क्विकली कंप्लीट किया था हमने. चिप सेलेक्ट है, यानी चिप हमारे पास चिप को चूज करने के लिए ये 2 कंट्रोल है, CS1 एंड CS2 बार. CS1, CS2 बार. CS1 का मतलब क्या है, अगर चिप को सिलेक्ट करना है तो चिप सिलेक्ट कैसे होगा, यहाँ पर 1 देना पड़ेगा और यहाँ पर 0 देना पड़ेगा. क्यों? देखिए ये तो CS1 ही है, और CS2 बार का मतलब 0 जो है कॉम्प्लीमेंट होके, देखिए CS2 बार का 0 कॉम्प्लीमेंट होके 1 बन जाएगा. इट मींस अगर मुझे किसी रैम कार्ड को इनेबल करना है तो चिप सिलेक्ट 1 और 2 पे 1 0 पास करना पड़ेगा, देन दिस चिप विल बी एक्टिवेटेड. आगे रीड एंड राइट, रैम है तो डेटा कैन बी रीड, तो रीड कंट्रोल हाई विल बी एक्टिव, और डेटा कैन बी राइट विल बी एक्टिव. दोनों एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते, या तो रीड होगा या फिर राइट होगा. सो आइदर ऑफ दीज टू विल बी इनेबल्ड,
either read signal will be enabled or write signal will be enabled. Last point, AD7, that is 7-bit address. Your 7-bit hai, you will see it is 128 bytes, and we can say 2 to the power 7 is equivalent to 128. And if we are going to have a 7-bit of address, अगर 7-bit का एड्रेस है तो हम 128 लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and that's why we're going to have 7-bit address. Come to the lower part. Lower part here 512 again chip select CS1 CS2 बार. इस चिप को सेलेक्ट करना है तो हमें 10 पास करना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाले में था. 10 पास करेंगे तो ये चिप एक्टिवेट होगा. आगे AD9, that is 9-bit address. It means what? We need 9-bit of address. Why 9-bit of address? Because 2 to the power 9 is equivalent to 512. क्योंकि ROM कार्ड में 512 लोकेशंस है, 512 बाइट्स हैं, यानी 512 लोकेशंस है, where each location correspond to 1 byte per data. I repeat, 512 byte means 512 words, 512 locations, and each location corresponds to 1 byte of data. ठीक है? अब तो बाइट तो मैंने बता दी, मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो बाइट तो बाहर हो गया, 512 लोकेशंस हो गई. अब 512 लोकेशंस के लिए हमें कितना एड्रेस चाहिए? 2 to the power 9 is 512. So we need 9-bit of address to represent every memory location in the ROM card. ठीक है? Now we'll see how this will work. You have to understand this table. See this table. Now CS1 chip select, CS2 bar read and write कैसे फंक्शन करेगा. अब देखिए दोनों जीरो है तो बस will be the inhibit and high impedance state. तभी मैंने आपको 3 स्टेप पर बताया था हाई इंपीडेंस का मतलब क्या है. इसमें कोई इनपुट का कोई कनेक्शन नहीं होगा. अगेन यू विल सी 0 1 पे अगेन इट विल बी इन द हाई इंपीडेंस स्टेट. थर्ड देखिए अब 1 0 पे एक्टिव होगा, मैंने बताया था 1 0 आ गया, लेकिन 1 0 में देखिए रीड भी 0 है और राइट भी 0 है. सो इन दिस केस अगेन इट विल बी इन द हाई इंपीडेंस स्टेट. नाउ नेक्स्ट यू विल see this ultimately this will activate the things. 1 0 important है. 1 0 देखिए 1 0 पे 0 0 है तो ये भी हाई इंपीडेंस हो गया. देखिए नेक्स्ट 1 0 दिया. now this time this will be valid state. 1 0 दिया और 0 1 दिया. 0 1 का मतलब क्या है? रीड 0 है और राइट 1 है. ये क्या करेगा? राइट परफॉर्म करेगा. इनपुट डेटा टू द रैम. राइट का मतलब सीपीयू डेटा जनरेट कर रहा है और जाके रैम में स्टोर करना है. आगे अगला देखिए 1 0 दिया, चिप सेलेक्ट 1 0, मैंने आपको बताया था ये 1 और 0 पे एक्टिव होगा रैम कार्ड. अब रीड की वैल्यू 1 हो गई, ये डोंट केयर, रीड 1 है तो ये इससे मतलब ही नहीं आगे क्या है. इस बार रीड परफॉर्म कर देगा नॉट टू डेटा फ्रॉम. इसका मतलब क्या है? वन थिंग शुड बी क्लियर. 1 0 पे चिप एक्टिवेट हो रही है पहली बात, और 1 0 के बाद अगर रैम की बात कर रहे हैं तो आइदर इट शुड बी रीड एक्टिव और राइट एक्टिव. रीड एक्टिव है तो रीड का रीड 1 होगा, राइट एक्टिव है तो राइट 1 होगा. रीड राइट दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकता. इधर लास्ट केस में आप देखो इसी में लास्ट इज 1 and 1. अगेन 1 and 1 में चिप एक्टिवेट नहीं होगी. तो यू विल सी पहले 3 के हाई इंपीडेंस, क्योंकि ये 0 0 था, 0 1 था, हाई इंपीडेंस एंड लास्ट हाई इंपीडेंस. इन दीज टू स्टेट्स द थिंग विल बी एक्टिव. यानी कि यहाँ 1 दिया, यहाँ 0 दिया, जब रीड एक्टिवेट कर लिया तो ये वाला पॉइंट ये रीड आ गया. 1 दिया, 0 दिया और राइट एक्टिवेट किया तो ये वाला पॉइंट ये राइट वाला. आगे टिपिकली फिगर रॉम में कैसे बनेगा, टेबल रॉम में कैसे बनेगा. रॉम के केस में हियर आई विल गिव 1 and 0. रॉम इज a non-volatile memory, so data cannot be changed. Data will be stored magnetically or any other form of infrared rays. These concepts are being used to store data in the RAM. फ्यूज करके डेटा स्टोर कर देते हैं. मतलब रैम में रॉम में डेटा फिक्स हो जाता है, ये कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है? उस पर राइट तो बार बार नहीं होगा. जब भी हम रॉम को एक्टिवेट करेंगे डेटा वहां से रीड करेंगे. इसका मतलब क्या है? देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट एंड रीड कंट्रोल इनपुट्स इन द रॉम चिप. जब भी हम चिप को एक्टिवेट करेंगे, रॉम को एक्टिवेट करेंगे, इसका मतलब कि डेटा हमें केवल रीड करना है. सो इट मींस नो अदर सिग्नल इज बीइंग प्रोवाइडेड. जैसे चिप एक्टिवेट हुआ, by default it means we are going to perform the read operation on the ROM. ठीक है?
So this is what the configuration. Now let me know any point which is not clear. Let me know anyone having any doubt regarding this configuration. It is clear to all of you. No doubt, sir. Okay, now we have to move ahead. Now depending upon this configuration, जो हमने अभी चिप का डिजाइन देखा है, जो कॉन्सेप्ट बताया, इसके बेस पे मैं एड्रेस जनरेट करना है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक का, जो एंड पॉइंट क्या है अगला स्लाइड, कि हमारे पास रैम और रोम मान लीजिए है इस कॉन्फ़िगरेशन के जो लिखे हैं 128 बाइट्स के या 512 बाइट्स के, और कंप्यूटर में रैम रोम लगा दिया हमने, लगा दिया रैम कार्ड। जब भी हम रीस्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को, बूट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करता है, उनको एड्रेस असाइन करता है। तो जो एंड नेक्स्ट स्लाइड है वही बताएगा कि कैसे कंप्यूटर एड्रेस को असाइन करता है। Now just see what we are having. Now this is what. So the example says, suppose we have in system we require 512 bytes of RAM and 512 bytes of ROM. हमें 512 बाइट का रैम चाहिए या we require in a system and 512 bytes of ROM we require. ये हमें मेमोरी चाहिए कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए। Now what जो हमने प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा उसमें क्या था, रैम का साइज क्या था, 128 बाइट्स की रैम थी, यानी एक रैम कार्ड 128 बाइट्स का था, और एक रोम कार्ड 512 बाइट्स का था। रोम कार्ड वाज हैविंग a size of 512 bytes. This is what the RAM and this is what the ROM. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर में हमें मेमोरी डिजाइन करनी है किसमें, जो 512 बाइट्स की रैम चाहिए और 512 बाइट्स का रोम चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बताना पड़ेगा हमें कितने रैम कार्ड चाहिए होंगे और कितने रोम कार्ड चाहिए होंगे। चूंकि हमारे पास एक रैम 128 बाइट्स का है, तो वी नीड 4 सच बाइट, बिकॉज 128 क्रॉस 4 इज 512। तो देखिए 4 रैम कार्ड चाहिए, रैम 1, रैम 2, रैम 3 एंड रैम 4। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो रैम हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा वो रैम का बेसिक साइज था या रोम का बेसिक साइज था, उसको यूज करते हमें इस मेमोरी को डिजाइन करना, 512 बाइट्स ऑफ रैम एंड 512 बाइट्स ऑफ रोम। 512 बाइट्स का रैम डिजाइन करेंगे तो वी नीड 4 सच रैम, तो वी कॉल इट एज रैम 1, रैम 2, रैम 3 एंड रैम 4। एंड अगेन यू विल सी द नेक्स्ट वन, 512 बाइट्स ऑफ रोम चाहिए। अब 512 बाइट्स का रोम चाहिए तो हमारे पास 512 बाइट्स का एक चिप अवेलेबल है रोम का, तो हमें एक ही रोम कार्ड चाहिए होगा। सो टू डिजाइन सच अ मेमोरी by using the basic RAM configuration जो पिछली स्लाइड में था, तो we need 4 such RAMs and 1 ROM card. ठीक है, so that is one thing that we should know, कितने RAM चाहिए और कितने ROM चाहिए वो निकाल लिया हमने, 4 RAMs and 1 ROM. Next we have to assign the address. Address कैसे असाइन करेंगे, देखिए अब हमारे पास यहाँ 10 एड्रेसेस लिखे हुए हैं, नॉर्मली इट इज 16 बिट ऑफ एड्रेस। ये देखो आप 4 हेक्स में लिखा है एड्रेस, तो 4 हेक्स की वैल्यू है और 4 हेक्स की, 4 हेक्स का मतलब क्या है, एक हेक्स कोड 4 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12 एंड प्लस 16, यानी ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 16 बिट का एड्रेस होगा। 1 से लेके 10 तक तो दिख रहा है, आगे 16 तक होगा ये, क्योंकि यूज नहीं हो रहा तो रिप्रेजेंट नहीं होगा, बट इट विल बी ऑल 16 बिट ऑफ एड्रेस। तो 16 बिट एड्रेस होगा, उसके बेस पे हम 4 बिट का हेक्स कोड रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी शुड नो कैसे एड्रेस आएगा और कैसे उसकी हेक्स वैल्यू आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एड्रेस वैल्यूज दैट वी आर क्रिएटिंग। अब देखिए रैम 1, रैम 2, रैम 3, रैम 4, कोई ग्रुप में बताएगा ऑडियो इनपुट से हर एक रैम का साइज कितना है जो अभी तक हमने पढ़ा। What is the size of each RAM or one RAM? 128 bytes. 120, yes, 128. Size of each RAM, एक RAM का साइज 128 है, टोटल 512 है, गुड। और साइज ऑफ ईच ROM, एक ROM कार्ड का साइज कितना जो हम पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बेस पे 512। द साइज ऑफ ROM 512। तो ये क्लियर हो गया क्यों मैंने पूछा। देखिए आपको मीनिंग क्लियर होगा। हर एक रैम 128 बाइट्स का है, ऐसे 4 रैम लगाए, और हर एक रोम 512 बाइट्स का एक रोम लगाया।
अब ये क्वेश्चन को पूछा, देखिए अब देखिए एड्रेस में आइए सीधे। अब चूंकि 128 का रैम है और हमने देख लिया था कि 128 का मतलब 2 की पावर 7, 7 बिट का एड्रेस चाहिए एक रैम में एड्रेस को लोकेट करने के लिए, एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए जो भी रैम है, देखिए 7 बिट का देख रहे हैं, क्रॉस लेकर, क्रॉस का मतलब क्या है, इट कैन हैव एनी वैल्यू, क्रॉस का मतलब एनी वैल्यू फ्रॉम ऑल जीरोस टू ऑल वन। में अगर 128 लोकेशंस हैं तो 7 बिट का एड्रेस चाहिए होगा, यानी स्टार्ट कहां से होगा, 7 बिट का 0 0 0 3 4 5 6 एंड 7, 7 बिट 0 शुरू होगा। अगला अगला जो लोकेशन होगा, मैं रैम 1 की बात कर रहा हूं, 0 0 0 0 0 0 1, और ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये लोकेशंस होंगे, 7 बिट की लोकेशंस होंगे, ऑल जीरो से लेके ऑल वन एक रैम के लिए। ऐसे रैम 2 में 7 बिट के एड्रेस होगा, ऐसे रैम 3 का होगा, ऐसे रैम 4 का होगा। अब देखो आप रैम 1 से लेके 4 तक सभी में देखिए 1 से लेके 7 बिट तक डोंट केयर है, यानी क्रॉस लगा रखा है, आप देखो ये, ठीक है, 1 से लेके 7 तक की, क्यों, बिकॉज 2 टू द पावर 7 इज 128। हर एक रैम को 7 बिट का एड्रेस चाहिए अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो रैम 1 में 7 बिट हो गए अलग, रैम 2 के 7 बिट हो गए, रैम 3 के 7 बिट हो गए, रैम 4 के 7 बिट हो गए। तो इसको हमने क्रॉस लगा दिया, इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम ऑल जीरोस टू ऑल वन फॉर ईच ऑफ द रैम्स। आगे अब रोम के लिए बताइए कितने बिट तक जाएंगे, कोई बता सकता है ऑडियो इनपुट से, हालांकि फिगर में गिवन है रोम में 9 तक सर, 9 तक। 9 तक, क्यों 9 तक की, क्यों, 2 की पावर 9 होगा। 2 की पावर 9 इज 512, 2 की पावर 9 इज 512, यानी कि 9 बिट हमें चाहिए एक रोम के अंदर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो 9 तक क्रॉस लगा दिया है। अब नाउ सी एज मेनी ऑफ यू टोल्ड द करेक्ट आंसर, देखिए 1 से लेके 9 तक क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। तो आई होप द क्रॉस पॉइंट इज क्लियर। क्रॉस का मतलब क्या है, अभी तक हमने रैम रोम को मिक्स नहीं किया। रैम 1 में 7 बिट क्रॉस हो गई, यानी 7 बिट का एड्रेस चाहिए एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के। रैम 2 में 7 बिट का एड्रेस चाहिए, रैम 3 में, रैम 4 में। और रॉम चूंकि 512 बाइट्स का है तो हमें 9 बिट का एड्रेस चाहिए। यहां तक आ गए। अब थोड़ा आगे और चलना पड़ेगा इसके बाद। अब देखिए सिस्टम में कितनी रैम है, चलिए बताइए कोई कितनी रैम यूज कर रहे हैं, कितनी रैम यूज कर रहे हैं इस एग्जांपल में, 4 रैम यूज कर रहे हैं। अब हमने 7 बिट जो लिखी, जिसको क्रॉस लगाया, वो तो रैम 1 की बात कर रहे थे, या रैम 2 की बात, रैम 3 या रैम 4 की बात कर रहे थे। आगे जब कंप्यूटर एड्रेस जनरेट करेगा, मैं कहना ही चाहता मेरे कंप्यूटर में 4 रैम लगी हुई मान लीजिए, है ना, ऐसे रैम 1 रैम 2 रैम 3 रैम 4, और चारों मान लो 128 बाइट्स की अलग अलग 128, तो रैम 1 की अपनी लोकेशंस होंगी, ठीक है, और रैम 2 की अपनी लोकेशंस होंगी, 3 और 4 की अपनी लोकेशंस होंगी। लेकिन सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम को नहीं पता कि रैम 1 लगी कि रैम 2 लगी, क्या लगी, सिस्टम को पता है कि इन 4 रैम में इतनी लोकेशंस मेरे पास है। सिस्टम क्या करेगा, एक एड्रेस जनरेट करेगा, वो एड्रेस रैम 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, या फिर 4 का हो सकता है। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या करेगा, चारों रैम को मिला के लोकेशंस लेगा और एक कंबाइन एक एड्रेस जनरेट करेगा। वो कैसे होगा, आगे देखिए, इंडिविजुअल पार्ट डिस्कस के लिए। अब आगे देखिए 4 रैम है, इसका मतलब क्या है, 7 बिट का एड्रेस तो इंडिविजुअल रैम के लिए हो गया। आई रिपीट अगेन, रैम 1, रैम 2, रैम 3 एंड रैम 4, एंड आफ्टर दैट यू विल सी। अब चूंकि 4 रैम है, सिस्टम को तो नहीं पता भाई क्या है, सिस्टम कंबाइन करेगा। अब कितनी रैम से, 4 रैम हमारे पास है। अब 4 रैम के लिए 2 बिट का एड्रेस चाहिए। यू विल सी 00 मतलब, मैं रेड से कर देता हूं, 00 मतलब ये रैम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 01 मतलब रैम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मतलब रैम 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 11 मतलब रैम 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ने के पहले एग्जांपल से आप समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक एड्रेस लिखा है, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया 10। अब तो टोटल एड्रेस देखिए पहले कितने बिट का हो गया, अब फाइनली टोटल एड्रेस हो गया 9 बिट का। अभी रैम की बात कर रहा हूं, 9 बिट का एड्रेस हो गया, और 9 बिट में 2 + 7 का मतलब क्या है, 2 बिट विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई
रैम 2 बिट चाहिए रैम को आइडेंटिफाई करने के लिए. यस, माय वॉइस इज कमिंग टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? ब्रेक होगी थी अभी. अब आ रही है ठीक, आवाज ठीक आ रही है? यस सर, अब आ रही है. हाँ, अब देखिए मैं आगे चलता हूँ. 9 बिट, मैं रैम की बात कर. 9 बिट में क्या है? 2 बिट 2 + 7. 2 बिट क्या है? 2 बिट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ रैम. कौन सी रैम यूज करेंगे वो 2 बिट से पता करेंगे, और उस रैम के अंदर कौन सी लोकेशन है वो 7 बिट से पता करेंगे. एग्जांपल कैसे? एग्जांपल देखिए, मैं इसी को लिखता हूँ. वन मान लीजिए कोई सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया 10 यानी 0 0 0 0 0 0 एंड 1. टोटल काउंट देख लें इसका. देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 9 बिट का एड्रेस हो गया. सीपीयू को नहीं पता रैम 1 है रैम 2 क्या पता है, बट इंटरनली हमें पता है कि ये 4 रैम से मिलकर बना हुआ है. तो कैसे पता करेंगे? कैन एनीवन टेल मी इन द ग्रुप कौन से रैम का कौन सी लोकेशन है और कौन से रैम की लोकेशन है? मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. कौन सी लोकेशन है ये और किस रैम की ये लोकेशन है, कैसे पता करेंगे? 9 बिट का एड्रेस है तो कैसे लिख रहे हैं? 2 + 7. 2 bit is used to first 2 bit is used to identify which RAM, and 7 bit the location of that particular RAM. अब देखिए फर्स्ट सेकंड लोकेशन, फर्स्ट 2 बिट क्या है? 10 10 का मतलब क्या हो गया? कौन सी रैम होगी? इट इज रैम 3. एंड फॉर दिस रैम 3 यानी रैम 3 की बात कर रहे हैं, एंड फॉर रैम 3 इट करस्पॉन्ड्स टू द लोकेशन 1 यानी रैम 3 की फर्स्ट लोकेशन को करस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है? सो इन दिस केस इट इज रैम 3 एंड लोकेशन नंबर 1. अब यानी कंप्लीट रैम के लिए हमने, अगर रैम के लिए एड्रेस जनरेट करना है सिस्टम 9 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा. 2 बिट रैम के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी रैम है, और 7 बिट टू आइडेंटिफाई अ लोकेशन इन एवरी रैम. ठीक है? लेट मी नो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वी लास्ट में रोम को ऐड करना है एक पार्ट. यस सर, क्लियर. Just now just see the last part with this. Now अभी हमने यहाँ तक तो आ गया. अब रोम में हमारे पास, अब देखिए रोम के क्या है? 9 लोकेशंस डोंट केयर है या क्रॉस लगी हुई है. Now you will see 10th बिट हमने ऐड कर दिया. 10th बिट क्या? देखिए 10 बिट में रैम की सारी वैल्यू 0 है और रोम की वैल्यू 1 है. इसका मतलब क्या है? अब सीपीयू देखिए एड्रेस, अब फिर से हम कंबाइन, सीपीयू क्या करेगा? रैम रोम के एड्रेस जनरेट कर रहा है, कंबाइन जनरेट कर रहा है, चाहे वो रैम का हो रोम का हो, किसी रैम का हो 1 2 3 4, किसी रोम का कोई मतलब नहीं. सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा एंड इंटरनली वो एड्रेस कहीं ना कहीं रैम का हो सकता है या रोम का हो सकता है. रैम में भी रैम 1 2 3 4 का हो सकता है, रोम में भी रोम 1 2 3 4 का हो सकता है. अब देखिए फाइनली कैसे होगा. अब सी फाइनल एड्रेस देखिए मैं लिख रहा हूं. इन दिस केस वी आर गोइंग टू हैव अ 10 बिट ऑफ एड्रेस, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 + 2 + 7 somehow I can say, या और लिख सकते हैं 1 + 9 ऑल्सो. क्या मतलब है? देखिए अगर रैम है तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा, और अगर रोम है तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा. कैसे? अब देखिए अगर कोई एड्रेस लिखा सीपीयू ने 1 0 0 मान लीजिए ऑल 0 0 0 0 1 + 2 + 7. भाई क्या मतलब इसका? पहला बिट क्या पता लगाएगा? 1. 1 का मतलब क्या है? एंड 10th बिट अगर 0 होता तो रोम को करस्पॉन्ड करता, क्योंकि ये 1 है तो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? रैम को करस्पॉन्ड कर रहा है. और रैम का मतलब हमें 9 बिट का वैल्यू चाहिए होगा. तो 9 बिट का वैल्यू मतलब क्या है? ये रोम को बात कर रहा है, और रोम में किसकी लोकेशन? ऑल जीरोस की बात कर रहा है. मैं इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं. और मान लीजिए यहाँ वैल्यू होता है 0, सेम बाकी सब कुछ 0 है, बाकी सब कुछ 0. इसका मतलब क्या होता है? देखिए 0 का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी 0 का मतलब इस बार क्या है? रैम की रोम? रैम. रैम. 0 का मतलब क्या है? देखिए ये रैम को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी इन चारों में से कोई वैल्यू होगी, इन चारों में से किसी रैम में जाना पड़ेगा. अगला कैसे पता करेंगे? अगले 2 बिट आइडेंटिफाई करें किस रैम में जाना है, तो फिर से 0 0 है. इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो ये रैम की बात हो गई. 0 0 का मतलब यानी रैम 1 की बात कर रहे हैं हम.
अब रैम 1 में आ गए, रैम 1 में आ गए और आगे फिर से सारे 0 हैं। इसका मतलब क्या है, हम रैम 1 की लोकेशन 0 की बात कर रहे हैं, रैम की बात कर रहे हैं, रैम 1 की बात कर रहे हैं और रैम 1 में लोकेशन 0 है, पहली लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एंड पॉइंट ओवर हियर। अब इसका ये हमने पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर दी, इसी पे एड्रेस जनरेट कर देंगे। एड्रेस ये, अब ये हेक्स एड्रेस कहां से आया, ये कैसे आएगा, जो ये 01 लिखे हैं इसको आप लिखा रहने दीजिए, जो क्रॉस है लोएस्ट एड्रेस पता करने के लिए 0 पुट कर दीजिए, हाईएस्ट एड्रेस पता करने के लिए 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 10 तक लिखे हुए और 11 से लेके 16 को सभी को 0 मान लीजिए, 11 से लेके 16 जो नहीं, विल बी ऑल 0, सारे 0 होंगे, ये सारे 0 लिखे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्रॉस को सबको 0 कर दिया तो हेक्स एड्रेस हो गया ऑल जीरोस, और क्रॉस को सबको 1 कर दिया, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 एंड 1। अब देखिए पहले 4 हेक्स कोड ऑल 1 हो गए, 15 यानी एफ होगा, देखिए एफ आ गया। यहाँ क्या हो गया, देखिए ये 0 तो फिक्स है, 0 1 1 7 होगा, ये 7 हो गया और बाकी सारे 0 हैं, देखिए क्या हो गया 0 एंड 0। जस्ट सी अनदर केस, रैम 1 में देखिए, अब यहाँ पर देखिए रैम 1 में ये फिक्स है, मतलब पहले की सब वैल्यू 0 रही होंगी 16 तक। अब इनको इस बार पहली बार 0 देखिए 0 कर देते, 0 0 0, मतलब एड्रेस रेंज पता कर रहे हैं ना, लोअर एड्रेस कहां से कहां तक रैम 1 शुरू हो रहा है, कहां से कहां तक रैम 2 शुरू हो रहा है, रैम 2 की बात कर रहे हैं, पहले 0 कर दिया। इसका मतलब देखिए अब क्या हो रहा है, लोअर एड्रेस देखिए क्या है, तो 9 से लेके 16 तक सारे 0 हैं, इट इज 0 एंड 0। अब ये वाला बिट देखिए ये क्या आ रहा है, 1 0 0 1 0 0 क्या बनेगा, देखिए 8 बनेगा, 8 और ये सारे 0 है तो 0 0 0 8 0 होगा। और इसी का हायर एड्रेस क्या होगा, देखिए क्या हम 1 पुट करते हैं, 1 1 1 1 1 1 एंड 1, बाकी शुरू के 0 ही हैं तो दोनों के दोनों बिट होंगे 0 एंड 0, ऑल 1 यानी ये 15, यानी ये भी 15 और ये भी 15, 15 का मतलब क्या हो गया, देखिए एफ एन एफ, तो 0 0 एफ एन एफ। तो लॉजिक आई हैव एक्सप्लेन, एड्रेस बिट क्या है, कैसे आ रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब केवल यहां पर क्या दिखा रहे हैं हम कि हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम दिस एड्रेस वैल्यूज को कैसे हेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अनदर एंड लास्ट एग्जांपल क्विकली, रॉम के लिए देखिए क्या है, 11 से लेके 16 सब 0 ही होगा। अब देखिए यहां पर यानी कि ऑल सब 0, ऑल जीरोस। अब देखिए इसको मुझे लोअर एड्रेस क्या पता करना, सारे 0 कर दें, तो ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, देखिए ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब 9 10 11 12 0 0 1 0 0 0 1 0, ये क्या बनेगा 2 बनेगा, और पहले चारों 0 0 2 0 0 शुरू हो गया। एंड देखिए क्या होगा, अब एंड कैसे होगा, देखिए अब एंड में क्या होगा, क्रॉस को 1 कर दें, सब 1 कर दें, 1 1 1 1, ऑल दीज विल बी 1। ठीक है, और शुरू के सब 0 हो जाए, तो 0 0 1 1 का मतलब क्या हो गया, देखिए मेरी पहली जो हमारे पास वो है ऑल जीरोस होंगे, देखिए ये तो 0 हो गया, फिर 0 0 1 1 का मतलब 3 हो गया, ये क्या होगा, ये एफ और ये एफ, 15 में 15 एफ एंड एफ। ठीक है, इस तरीके से इसका हम एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस पॉइंट ऑफ एड्रेस जनरेशन? हेक्स एड्रेस में केवल हमने क्या किया है, जो हैज ए हिंट है, जो भी क्रॉस है, क्रॉस है यानी कि इसकी वैल्यू 0 या 1 दोनों हो सकती है। लोअर एड्रेस पता करने के लिए केवल क्रॉस को आप 0 कर दीजिए और हायर एड्रेस को पता करने के लिए केवल क्रॉस को 1 कर दीजिए, चाहे रैम 1 की बात हो, चाहे 2 की बात हो, चाहे 3 की बात हो, चाहे 4 की बात हो, चाहे रॉम की बात हो। और जो 0 1 लिखे हुए फिक्स, उनको आपको चेंज नहीं करना है। 11 to 16 शोन नहीं है, तो 11 to 16 भी चाहिए होंगे, उन सबको ऑल 0 मान के चलना है। तो 11 to 16 विल बी ऑल 0, और जो 8 9 10 0 1 लिखे हैं वो लिखे रहेंगे, और जो क्रॉस लिखे हैं वो क्रॉस को ही या तो 0 पुट करिए
या फिर 1 पुट करिए. 0 पुट करेंगे to identify the lower address, starting address, and 1 will put in to know the ending address. ठीक है. So with this we complete this part of memory address map, where we saw how to generate how to use the RAM and ROM cards, and how the system will generate the addresses for this combination of RAM and ROM cards. Okay, any point of clarification? Okay, just go through it. We'll share the PPT to you, and with this I think the enough part I have given, enough time I have given to explain the logic. So I hope this might be clear to you all. I will share the PPT, go through it, and let me know in case of any problem. Okay. Okay, thank you. Any point which is not clear? Anyone ask me? Sorry. Okay, with this we end up our lecture. Thank you.